हाँ भाई, क्या हाल है भैया? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग. सेम शर्ट सेम हालत एज पिछली एपिसोड, बट आपको मैंने बताया था एक ही दिन में शूट करें एंड आई फॉरगॉट टू ब्रिंग अनदर शर्ट बिकॉज आई एम स्टिल वेरी स्लीपी बट आई एम फाइन नाउ. मोइज मेड वंडरफुल कॉफ़ी, मेरी आँख खुल गई है. सो बाकी ये सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड यू कैन सपोर्ट दिस चैनल ऑन patreon.com/ganjiswag which helps us a lot. You have no idea. Thank you so much for that. बाकी इजी पैसा जैज कैश ये वाले ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं फॉर लोकल व्यूअर्स जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है या जिनको इशू होते हैं. सो यू कैन यूज़ दैट एज वेल. चलते हैं पहली ईमेल की तरफ. It says mysterious, non-affectionate, introverted wife behavior and uncertain future of Shadi life. Okay. Hi Junaid bhai, I hope this email finds you well. I'm very grateful for the work that you're doing and I'm an active fan of yours. Going into the question right away, I'm 32, living and working uh, in the Western country. I got married a month and a half ago, but I'm very, very anxious of what lies ahead and feel I need to take you on my situation so I can assess it better. Need your take, not you. Background. Currently, my parents are in Pakistan and I have another sister in another Western country who's been married for 5 years and does her own thing. My mom was rishta hunting for me here last year and we decided to go for a girl here for easy adjustment reasons. यानी उन्होंने जिस मुल्क में थे वहीं पे ढूंढ ली लड़की. I met a few and then I was rejected by them and I rejected others. Eventually I met my wife. We met in person for around 3 months before saying yes to each other and got married last year. The main reason why I liked her is because she's introverted, does not talk much, and I found her to be very sharif natured, which is the most important thing I was looking for in my wife. Hence the reason I picked her over other girls, as I thought she would not be chalak, street smart, and be the cause of Saas Bahu BS, and be supportive and caring. I think I'm the same too, and introverted, bit socially awkward. However, during our interaction and conversations, I would do most of the talking. During our engagement period, we never even said things along the lines such as "I love you, Meri baby," Jaan ka tukda, any romantic stuff, and I never touched her, handled her romantically either. Was like that for a year until we got. Was like that for a year until we got married. अच्छा, शादी से पहले. I thought शादी के बाद things would fall into place by themselves in terms of intimacy/physical relations. Fast forward to wedding day, etc. Our extended family and friends all are at the shadi and the shadi night. My mom and khala found it fishy that they have not seen any signs of her being lovey-dovey or intimate with me. During married life, I'm always the one to touch her, hold her hand while walking, and put my arm around her shoulder, kiss her on the cheek. However, she has not done anything like that with me, nor shown any affection. We came back from visiting my parents and extended family in other parts of the country for a week. And during that time, my mom told me again that she finds it very shocking that I'm sitting close to her, being nice, etc., but she's not showing any affection towards me or being romantic in return. Problem. In my opinion, since my wife is very introverted, it might take her some time to get/show affection with me. Um, uh, hence of us having physical sexual, which I think I also need a little more time, perhaps a couple of months. But now, due to my mom's and khala's comments, I'm kind of in a dilemma and see the non-affectionate or perhaps very shy behavior of my wife as a red flag, and I'm questioning myself whether I made the right choice. I think my wife also has low self-esteem as well, as during our honeymoon phase or during outings, whenever I tell her to take a selfie of us, she is very reluctant as she does not find herself good looking. I'm continuing to be nice and affectionate towards her, but fear that what if she never shows any affection and God forbid things might not work out in her shadi. I really don't know what the future of my shadi looks like. I'm very anxious. Maybe I'm overreacting. Please give me your take on my situation, whether you see it as a problem. Please advise. Thank you. Thank you so much for your email. So एक भाई हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं
और वहीं पे उन्होंने शादी की, और उन्होंने जिनसे शादी की उसकी एक बुनियादी वजह थी कि जी लड़की इंट्रोवर्ट है, क्योंकि ये ख़ुद भी ज़रा खामोश तबीयत के हैं, मगर वो कुछ ज़्यादा ही खामोश हैं, शी डजन रिस्पॉन्ड। उनकी मदर और खाला ने भी नोटिस किया कि वो इतना कोई मतलब शक्ल पे आ जाता है ना कि लाइक यू नॉट रिटर्निंग इमोशंस। खैर, तो अब चूँकि ये आपने क्या लिखा, 3 महीने पहले प्रोसेस चला ना शादी का, सो आई थिंक दैट्स इनफ टाइम। आई एम श्योर इफ शी हैड समथिंग टू से शी वुड हैव सेड दैट। इट्स नॉट लाइक ज़बरदस्ती की शादी। अमूमन ज़बरदस्ती की शादियों में ये होता है कि ज़ाहिर है वो कहते हैं ना, अरेंज मैरिज में आप लव मैरिज में अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करते हो, अरेंज मैरिज में किसी और की गर्लफ्रेंड से। सो अमूमन ऐसा होता है कि वो मोहब्बत किसी और से होती है, शादी कहीं और हो जाती है, तो वो एक ज़ाहिर है सौरो और सैडनेस वो चेहरे पे झलकती है कि यार मैं कहाँ फंस गई या कहाँ फंस गया वगैरह वगैरह। तो वो सिचुएशन तब होती है जब ज़बरदस्ती की शादी। क्लियरली यहाँ कोई ज़बरदस्ती थी नहीं, आप यू गाइज टुक योर टाइम और काफ़ी बातचीत के बाद यू गाइज गॉट इनटू दैट। सो क्लियरली दैट इज़ नॉट एन इशू। आई मीन दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड कि उनको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी या कोई मजबूरी नहीं होगी। और बाहर के लोग ज़रा थोड़े से कदरे इंडिपेंडेंट होते हैं, हालांकि टॉक्सिक फैमिलीज़ पूरी दुनिया में होती हैं और बड़ी कंट्रोल्ड होती हैं, और ऐसी भी होती हैं कि बच्चों को फ़ोन का एक्सेस भी नहीं दिया होता और लाइक बाकायदा कैद भी रखा होता है। ऐसी भी मैंने कहानियाँ सुनी है। फर्स्ट वर्ल्ड, मतलब कहानियाँ नहीं कहूँगा, उन लोगों की जिन लोगों से मैं पर्सनली मिला भी हूँ, वो वैसे बहुत सुपर नाइस और औरत की आज़ादी के मुतहम्मिल, और अपनी बीवी का पासपोर्ट छुपाया हुआ है और घर में उनको ताला लगा के बाहर निकलते हैं। मतलब ये हाल है लोगों का। तो खैर, तो ये बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ऐसी हाँ, टॉक्सिक फैमिलीज आर एवरीवेयर। कुछ लोग होते हैं दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, उनको बहुत टाइम लगता है खुलने में। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अभी आपको 3 महीने हुए हैं, दैट्स नॉट इनफ टाइम। अब हनीमून, अब देखें ना यार, हम लोग जिस सोसाइटी में होते हैं ना, हमें सारी ज़िंदगी बोलते हैं जी गैर मर्द से बात नहीं करनी, फिर एकदम गैर मर्द कमरे में आ जाता है। तो हर लड़की या हर लड़का भी जो है ना, वो इतने फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करते इन चीज़ों को। कुछ चीज़ें उनके लिए शॉकिंग होती हैं, चाहे वो जितनी आराम से भी हुई हों, तो उनको समझ नहीं आ रहा था करना किस तरह है। या कुछ लोग वाकई नहीं करते एक्सप्रेस, आई मीन, या उनका तरीक़ाकार वो अपने दिल में होता है कि जी, अब फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो माई वाइफ वुड हैव द सेम आर्ग्यूमेंट समटाइम्स कि आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, बट मैं अपने अंदर से तो पूरा होता हूँ। तो कुछ लोग अपने अंदर समझ रहे होते कि मैं तो पूरा कर रहा हूँ, बट शायद वो अगले को दिख नहीं रहा होता, या उनको लगता है कि इतना ही होता है, या उन्होंने इतना ही होता हुआ देखा होता है अपनी सराउंडिंग में कि हाँ बट ठीक है, अम्मी अब्बू ने भी तो कभी किसी का हाथ नहीं पकड़ा, अपना हाथ एक दूसरे का, किसी का क्या, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा तो मुझे भी नहीं पकड़ना, यू नो। आपके सराउंडिंग ही आपको टीच करते हैं। आप अपने वालिदैन को देखते हो एज अ कपल, एंड देन वही चीज़ फिर आपकी शादी में रिफ्लेक्ट होती है सम हाउ ऑन मोस्ट ओकेजन्स दो। सो अलाउ हर टाइम। और जहाँ आपने बात की सेल्फ इस्टीम की, येस दैट इज़ अ प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। हम इंस्टाग्राम की दुनिया में रहते हैं और इंस्टाग्राम में एवरीबडी इज़ पिक्चर परफेक्ट, फोटोशॉप्ड, ये पतली कमर एंड एस आउट, टिट्स आउट, वट एवर, और एक फेक लाइफ, फेक हैप्पीनेस, दिस इज दैट। तो उसने लोगों के अंदर बहुत सेल्फ इस्टीम इशू डाल दिए हैं। लाइक लोगों को अपना एक पिंपल तक बर्दाश्त नहीं होता, एंड लाइक फेयर स्किन से तो बात बहुत आगे निकल गई है, एंड दिस एंड दैट, पता नहीं क्या। सो अ लॉट ऑफ पीपल फेस दैट एज वेल, अ लॉट ऑफ पीपल। अब देखें, हम तो बुलेट प्रूफ बेगैर था, हमें तो नहीं फील होता, बट बहुत से लोगों को होता है। दे सी हैप्पीनेस ऑल ओवर। वो नहीं क्यूट कपल्स होते हैं इंस्टाग्राम के, ओ माई गॉड, देर ऑलवेज पिलो फाइटिंग एंड क्यूट, और वो बैल्कनी में बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। अब उनके भी इश्यूज होते होंगे, बट ऑब्वियसली वो अपनी लड़ाइयाँ थोड़ी डालेंगे इंस्टाग्राम पे, वो वही अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे। तो लोगों के जहन में ये बन जाता है कि यार ये भी तो हैं, इतने प्यार से रहते हैं। कोई कपल इतने प्यार से नहीं रहता, आई कैन गारंटी यू। अब छोड़ो, मैं क्या बताऊँ, बहुत सारों को तो मैं जानता हूँ यार, मतलब लाइक यू नो पब्लिकली कुछ और है। अब जाहिर है चैलेंजेस हर शादी में होते हैं, किस में नहीं होते, राइट। तो बहुत से लोग दे लुक एट कार्डेशियंस, दे लुक एट इंस्टाग्राम मॉडल्स, दिस एंड दैट, एंड दे थिंक वही ब्यूटी के पैरामीटर्स है, और मेरी तो नाक ऐसी, मेरे दांत ऐसे, मेरे कान ऐसे। तो वो उनको इश्यूज हो जाते हैं, या वो बुली हुए होते हैं ज़िंदगी भर। सबसे ज़्यादा तो घर वाले बुली करते हैं, तू काला है, तू छोटा है, टिंका है, ये है वो है।
बचपन से ही सेल्फ एस्टीम इश्यूज, फिर अगर किसी को वेट प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल में बुली होते हैं, दिस एंड दैट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. सो आई वुड अर्ज यू, आई मीन आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे मुल्क में रहते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर यूर साउंड mentally. So I would say you allow her time and like communicate. Communication is the key. ये तो सबसे अच्छी चीज़ है. और जितना ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे उतनी ज़्यादा आप सो लाइक यू नो व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, मैं ये सबको ये कहता हूँ, मैंने भी रिसेंटली चीज़ सीखी है, टिकटॉक से सीखी थी, कि व्हेन यू हैव एन इशू, यू एंड योर वाइफ, यू एंड योर पार्टनर आर ऑन वन टीम अगेंस्ट द इशू. हम क्या करते हैं, पार्टनर को इशू के ऊपर रख देते हैं कि भाई तू इशू है. नहीं, द इशू इज़ समथिंग एल्स. सो यू हैव टू वर्क एज अ टीम एंड एड्रेस दैट इशू, राइट. तो मैं आपको ये कहूँगा एट दिस स्टेज ऑफ योर मैरिज, अभी इट्स वेरी रिसेंट, ठीक है, आपकी अम्मी ने नोट किया होगा. अब देखें, अगेन आपकी अम्मी अलग नेचर की हो सकती हैं, आपकी कज़न्स अलग नेचर की हो सकती हैं, वो खिलखिला के हंसती होंगी और थोड़ा पीडीए शीडीए कर लेती होंगी वगैरह वगैरह. कुछ लोग नहीं होते उस तरह के. उनका कंसर्न अपनी जगह सही है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो अपने, उनका जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है ना, वो उनके एक्सपीरियंसेस पे मबनी है. आपको थोड़ा उसे ब्रॉडर देखना होगा कि हर कोई ऐसा नहीं होता. अगर उन्होंने ऐसा देखा तो दैट डजंट मीन कि सारे ऐसे खिलखिला के हंसते हैं या ओवरली अफेक्शनेट होते हैं. कुछ लोगों ने यार घर में मोहब्बत देखी ही नहीं होती, तो उनको करना ही नहीं आती मोहब्बत, क्योंकि घर में कभी नहीं देखी. यू नीड टू आस्क हर उनके पेरेंट्स की लव लाइफ कैसी थी. आई एम श्योर दैट विल आंसर अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चंस, राइट. बहुत सारे लोगों को मैं जैसे कहा है, उन्होंने चूंकि घर में कभी मोहब्बत नहीं देखी तो उनको करना भी नहीं आती. डोंट फोर्स लव. या ज़रूरी नहीं है कि वो गले में हाथ डाल के ही मोहब्बत झलकती. कभी कभी लाइक यू नो इवन अ स्माइल कैन डू, और मे बी शी डज समथिंग दैट यू रियली लाइक. वो भी एक मोहब्बत का बहुत सारे तरीके होते हैं. एक्सप्रेशन मोहब्बत का बहुत सारे होते हैं, खाली हाथ पकड़ना नहीं होता. आई मीन आई एम श्योर फिजिकल टच हैज़ इट्स ओन मेरिट्स एंड पर्क्स, मगर बहुत सारे तरीक़ों से एक्सप्रेस की जाती है. मे बी उनका मोहब्बत का तरीका अलग हो. तो ये हो सकता है. मैं भी ये नहीं कहूँगा कि मे बी शी डजंट लव यू, और मे बी शी इज़ फोर्स्ड इनटू इट, या मे बी शी लव समवन एल्स. मैं ये नहीं कहूँगा. आई डोंट नो हर, आई डोंट नो द सिचुएशन. ये आपने ही कंक्लूड करनी है. सो मगर उसके लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, रादर देन यू लिसन टू योर मॉम, यू लिसन टू योर खाला, और इवन यू लिसन टू मी. I don't know the situation, man. Your mom only knows her as a bahu. She doesn't know her as a wife. You know her as a wife. So you need to communicate to her and ask her, yeah, these are the things that I like and these are my expectations. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, आपको पहले ही कम्युनिकेट करनी चाहिए हैं. उसमें लाइक हाउ डू यू लाइक योर बर्थडेज टू बी सेलिब्रेटेड, हाउ लाइक यू नो तुम्हारी what makes you happy, what are the things you like, what are the things that you expect from me. ये सारे क्वेश्चंस बहुत पहले करने होते हैं. खैर इट्स ओके, आई मीन इट्स नॉट ओके, मगर ये कि चलो अब आपकी हो गई है तो उनसे बैठ के उनसे पूछें. आप उनसे ये पूछें कि भाई इज़ देयर समथिंग दैट आई नीड टू नो, और इज़ इट समथिंग, मतलब आर यू कैरिंग सम ट्रॉमा और समथिंग दैट इनहिबिट्स योर एक्सप्रेशन. उनसे बात करने की कोशिश करें, उनसे पूछें. आई एम प्रीटी श्योर शी इज़ होल्डिंग समथिंग इन हर हेड जो कि उनको अलाउ नहीं करो, जो उनको इनहिबिट कर रहा है. सो इफ़ शी फेल्स टू एक्सप्रेस इट, मे बी सजेस्ट हर थेरेपी, और मे बी सजेस्ट हर सम काउंसलिंग. क्योंकि इंसान हर जगह खुल के बात नहीं कर सकता. काउंसलिंग इज़ वन थिंग जहाँ पे यू नो कि दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू जज मी, इवन दो आई कैन शेयर माई वर्स्ट एंड वर्स्ट एक्सपीरियंसेस विद दैट पर्सन. उसका काम ही नहीं है जज करना, उसका काम है सोल्यूशन देना. सो काउंसलिंग हेल्प्स एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर अ हस्बैंड, यू कांट एक्सप्रेस एवरीथिंग टू यू बिकॉज देयर इज़ अ फेयर ऑफ जजमेंट, देयर इज़ अ फेयर ऑफ एनीथिंग. रिएक्शन भी हो सकता है, ओवर रिएक्शन भी हो सकता है. सो आई वुड से इट्स टू अर्ली टू आई मीन योर एंग्जाइटी इज़ वेरी, बहुत काफ़ी वैलिड है, होनी भी चाहिए. नई नई शादी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है यार शादी के शुरू के 6 महीने तो स्पार्कलिंग होते ही होते हैं ना, उसके बाद तो चलो कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है. मगर अगर शुरू में ही ना मिले तो इंसान को ज़ाहिर कंसर्न होता है. आई मीन एंड आई ऑलवेज से यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद योर स्पाउस. इससे ज़बरदस्त चीज़ कोई नहीं हो सकती. इफ़ यू आर नॉट इवन फ्रेंड्स देन व्हाट आर यू? टू पीपल हु लिव टुगेदर, एंड दैट्स लाइक द वर्स्ट थिंग. दैट्स लाइक जेल. सेलमेट नहीं होता, साथ रहते हैं बस रहना है, क्योंकि
जेलर ने बोला कि जी तुम दोनों की कोटरी है तो अब रह रहे हैं, बर्दाश्त करना है, वो उधर है मैं इधर हूँ. That's like the worst way to live. You need to have a bond with your partner. You need to have friendship. Friendship is very important, and you have to have common goals. क्योंकि everything fades away. Love fades away. Sex fades away. सब फेड हो जाता है. आपका कॉमन गोल होता है दैट बाइंड्स यू टुगेदर. कि यार हम दोनों ने ख्वाब देखा, वी नीड टू बाय दिस लेक हाउस, या हमें अपने बच्चे को यहाँ भेजना है, ये करना है, वो करना है, ये हमारा रिटायरमेंट प्लान है, हमने इतना ट्रैवल करना है. द गोल्स आर समथिंग दैट बाइंड्स यू टुगेदर. सो फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फ्रेंडशिप कम्युनिकेशन से ही होती है. सो यू नीड टू कम्युनिकेट टू हर, और फ़ौरन. सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू कम्युनिकेट. आपने ना फ़ौरन नहीं बोलना मुझे ये नहीं मिल रहा, क्योंकि फिर वो हो जाएगी कि यार ये तो सेल्फिश है, इसने मुझसे तो पूछा नहीं कि मुझे क्या पसंद है, राइट. सो डू नॉट अप्रोच हर बाय सेइंग कि आई एम अनहैप्पी बिकॉज यू डोंट टच मी, यू डोंट डू दिस, यू डू दिस. ये नहीं. अप्रोच हर, व्हाट डज शी लाइक, like what is her definition of expression, या क्या है, is there something that I need to improve on. तो जब आप इस तरह से आओगे ना तो अगला बोलेगा कि ओके ही इज़ नॉट अटैकिंग मी एंड ही कम्स फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ कि अगर मुझ में कोई कमी पेशी है तो मैं उसको पूरा करता हूँ. सो विच इज़ हेल्दी, विच इज़ पॉजिटिव. अगर आप स्टार्ट ये करोगे मुझे तो ये मिल नहीं रहा, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये थी, तो फिर अगला डिफेंसिव हो जाएगा, बैकफुट पे जाएगा, और फिर वो बात नहीं हो पाएगी. सो एड्रेस हर पॉजिटिवली, रीच आउट टू हर, and ask her what's bothering her, if there's something that you need to know, या if she likes to take more time. अगर उसको maybe she's uncomfortable, शायद उनको आदत नहीं है, और बस वो एक शादी ज़ाहिर करनी थी तो वो हो गई है. अब वो, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम लगता है खुलने में, इमोशनली खुलने में बहुत टाइम लग जाता है. आई मीन एवरीवन इज़ डिफरेंट. सो या, तो कम्युनिकेशन इज़ योर बेस्ट बेट राइट नाउ. Do that, and I hope things work out your way. ठीक है, अपना ख्याल रखें. Thank you. All right, next one is very important for professional people. It says red flags in UAE job market. Dear Ganji bhai, this is my first email to you. I'm an introvert and ambitious person, born, brought up in Middle East. For graduation, economics, dad sent me to Lahore. After graduation, I also continued to work in that city for 5 years in the field of HR and marketing in multiple sectors. Most of my experiences lie in the financial sector. I came back in 2019 to the UAE to work and live with my family. Since then, I struggled to find a job with stability. I'm sharing list of experiences below in UAE companies. Job number one started in tourism company as a social media officer. I left the company after a month due to no daily work, training, and necessary tools from the company. I was sitting idle daily. Okay. Job number two, it was an Indian financial broker company in Bar Dubai. I worked there as a social media officer for a month. The workload was beyond my management. अच्छा, पहले काम मिल नहीं रहा था जॉब पे, दूसरी पे ज़्यादा मिल गया. Also, firing was very common in that company. Toxic management. They asked me to shift to the other department, but then I refused and they let me go. Job number three, it was an event management company. The management was Arab. Although all jobs are respectable, but for me, I felt it was inappropriate to daily clean the whole showroom as per my education and my work background. From mopping to take the trash out, I was not told during the interview that this task will also be part of my JD. I left that company and did not even get paid for 15 days. Of course, why would he pay? मतलब अरब तो ऐसी है. Job number four, I got hired as an HR officer in an HR agency. I worked there for a year. I enjoyed my work a lot in the beginning and everything was going fine. But then I left the company due to extreme toxicity and mismanagement. Lack of work, credibility, unpaid overtime and salary delays were there. But I did not mind that. Job number five, I got, अभी ये 2019 से 22 के दरमियान ये 5वीं जॉब हो रही है. आगे एक और है. I got hired as an HR officer in a startup real estate Arab company. The workload was beyond my management. I used to work 8 to 9 hours every day in Ramzan. Also, firing was very common in that company. Toxic CEO and his wife and miscommunication. I overheard that the CEO wanted to fire me due to not being able to manage workload. PS, I have no real estate experience. I was still learning. So instead, I left the company, and when I asked for my salary, the CEO gaslighted me for poor performance and did not even give me my salary for 15 days. अब 15-15 दिन में जॉब छोड़नी है.
Job number 6. Currently, I am working as an HR officer in an Arab real estate startup company. It's almost been a month here and I'm afraid to lose my job because I'm unable to search candidates who have 2 to 3 years real estate experience and are willing to work on commission basis only. My problem is that I'm too innocent idiot to spot red flags in companies slash management. Although I do my research before applying, sometimes I'm unable to find out about the company online. Also, I feel that the UAE job market is highly racist when it comes to hiring. I have seen extreme dumb fucks being in a better company and position just because of their nationality, while skilled Pakistanis being left out. I made minor mistakes, but I rectified it. Although I did my work with honesty and dedication, I don't mind doing unpaid overtime. That much of a dedicated person I am. So you're not dedicated, you're just not being wise enough. ओवर टाइम आपका राइट है. सी दिस इज़ द रेड फ्लैग इन यू कि आपके साथ गलत हो रहा है तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, मेरी किस्मत है. ऐसे नहीं करना होता. वो कहते हैं ना कि यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय एक्सेप्टिंग वॉट यू डू एंड वॉट यू से नो टू. सीधी सीधी बात है. My communication skills are excellent and I can manage tasks. I have made certain achievements in my career in Pakistan. Even in university, I was an above average all-rounder student. But facing these situations has lowered my self-esteem a lot. My family is also tired of my struggles and thinks that the problem is in me. I'm tired of myself and have developed anger issues. Also, I feel suicidal. Please advise. Thank you. First of all, नौकरी के पीछे खुदकुशी नहीं करता, अच्छी बात नहीं है. दूसरी चीज़ ये, maybe perhaps you need to focus on yourself. देखें, जॉब मार्केट के रेड फ्लैग्स आपने बताया. आपने जितनी भी इंडस्ट्रीज़ बताई ये बहुत शेकी किस्म की इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे बहुत हायरिंग और फायरिंग होती है. रियल स्टेट में कोई भी 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं टिकता, मोस्ट पीपल, बिकॉज ख़ासतौर पे वो जो रूकीज़ होते हैं जो कि नए होते हैं. ये जो आपने फाइनेंशियल ब्रोकर कंपनी की बात की बर्दो में, प्रॉब्ली वी वर इन द सेम कंपनी बिकॉज वो भी ऐसी ही थी और बर दुबई में ही थी और उनके टारगेट्स होते हैं और स्पेशली आई एम अज्यूमिंग बिकॉज आप रेजिडेंट हैं, वहीं पली बड़ी हैं, तो आपके पास अपना वीज़ा हो. तो जब आपका वीज़ा अपना होता है ना, सो यू आर मोर लाइकली टू बी लेट गो. क्योंकि जब कंपनी ने वीज़ा दिया होता है तो वो बहुत रिसर्च करके और आपका पोटेंशियल देख के इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि आपके वीज़ा पे और मेडिकल पे और इन सब पे, मतलब आपकी हायरिंग पे जो है ना 20-25 हज़ार दिरहम खर्च हो जाता है. मतलब मेरे ज़माने में 14-15 होता था, तो अब आई एम श्योर ज़्यादा हो गया होगा, राइट. तो फिर वो इतनी आराम से लेट गो नहीं करते. बट बिकॉज और यही वजह है कि वो कहते हैं जी मस्ट हैव योर ओन वीज़ा, ताकि निकालने में आसानी हो, कोई दुख ना हो. आज अच्छा आपने इंडियन फाइनेंशियल ब्रोकर कंपनी लिखी है, वो तो हाँ खैर वो इंडियन तो नहीं थी, इट वॉज एन ईरानियन, बट हाँ वो इंडियन कह के बेचते थे. सो टूरिज्म कंपनी सेम, रियल स्टेट सेम, फाइनेंशियल ब्रोकर सेम. आप जिस इंडस्ट्रीज़ में जा रही हैं ना वो हैं ही इस तरह की. और आपने बोला कि वो जी रेसिस्ट है, बिल्कुल दुबई मिडल ईस्ट बहुत रेसिस्ट है. आप लेबनीज़ हो, आपकी बड़ी अच्छी पोजीशन, आप लेबनीज़ लड़की होंगी, आपकी तनख्वाही अलग होगी. तो ये तो है. पाकिस्तानीज़ अनफॉर्चुनेटली वी आर लाइक, you know, in the sexual market, brown men are like nobody wants them. White से privilege मिल जाती है, black से अलग privilege मिल जाती है, brown का कोई game ही नहीं है. Similarly, when you're brown, like South Asian brown in the Middle East, कोई ख़ास सीन नहीं है. अब ये 15-15 दिन में आपकी जॉब जा रही है, या तो you give up very easily, और ये कहना कि मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ बिकॉज यू एक्सेप्ट कि हाँ चलिए ठीक है ओवर टाइम ना दें, दैट्स वाई यू आर बीइंग ट्रीटेड द वे यू आर बीइंग ट्रीटेड. यू नीड टू टेक अ स्टैंड, यू नीड टू लाइक. अच्छा आपने बोला कि मैंने इंटरनेट पे भी अच्छी तरह रिसर्च करके जाती हूँ, बहुत सी कंपनीज़ का कुछ मिलता नहीं है. सो दैट्स लाइक द रेड फ्लैग राइट देयर. जिसका फुटप्रिंट इतना नहीं है ऑनलाइन, तो क्लियरली उनकी कोई इतनी स्टैंडिंग नहीं है. यू नीड टू फाइंड बेटर कंपनीज, फाइंड बेटर HR हेड हंटर्स ऑन लिंक्डइन, बहुत सारे मिल जाते हैं. आई एम नॉट श्योर अबाउट द करंट मार्केट क्या है, लेकिन ये कि यू नीड टू चेंज अ लॉट अबाउट योर सेल्फ एज वेल. यू नीड टू स्टॉप एक्सेप्टिंग such jobs and such industries जहाँ पे इस तरह का कल्चर रहा हो. आई मीन आपने 6 जॉब्स कर ली हैं 2019 से, लाइक 3 साल में, जिसमें से 2 साल तो कोविड का था. सो आई एम प्रीटी श्योर यू हैव इनफ एक्सपीरियंस टू स्मेल अ रेड फ्लैग वंस यू वॉक इन टू अ कंपनी. यू नो, अगर आप खलीज सेंटर के ऑफिस में जा रही हैं तो क्या ही होगा. खैर JLT में भी ऐसे ही होते हैं. आई मीन यू नेवर नो. सेल्फ एस्टीम इशूज़ होना, I mean, obviously it's there because you, ज़ाहिर है आप अपने आप को फेलियर कंसिडर करती होंगी और घर का भी प्रेशर होगा और बुरा भी लगता है जब आपने पढ़ाई वढ़ाई की और फिर उसके बाद इस तरह ट्रीट हो रही हो. अब ये जो मॉपिंग वाली बात है ये आपको करनी नहीं थी. अगेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू दोज हु मॉप द फ्लोर,
मगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एचआर का है, अब आप वहाँ पोछा लगाएंगी या दैट मीन्स आपने एक्सेप्ट किया कि मैं ट्रैश लेके जाऊंगी, आपको वहीं पे रखना चाहिए कि भाई दिस इज़ नॉट माई जॉब डिस्क्रिप्शन, मेरा काम नहीं है ये। तो वही वाली बात है ना, यू ट्रीट पीपल हाउ टू ट्रीट यू, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू बाय एक्सेप्टिंग व्हाट यू डू एंड व्हाट यू से नो टू। अब इस पे आई मीन टेक इट एज अ लर्निंग, 6 नौकरियाँ इज़ लाइक हेल इनफ लर्निंग। ट्राई नॉट टू रिपीट द मिस्टेक्स। ये रेड फ्लैग्स आपको हर जगह मिलेंगे, पाकिस्तान इज़ नॉट रोज़ी, या फिर ये कि ठीक है वेस्ट में आपको थोड़े से राइट्स बेहतर मिल जाते हैं, बट अगेन हर जगह मोर लेस सेम सिचुएशन होती है। You need to be smart enough in terms of choosing where you're applying. You need to be smart enough in terms of negotiating your salary, negotiating the terms and conditions. यह आपके ऊपर होता है। तो आपने जो है ना जॉब इंटरव्यू में ही ये सवाल करना है। एक जॉब इंटरव्यू में सवाल आपसे किए जाते हैं, फिर आपने सवाल करने होते हैं कि जी आपका कल्चर क्या है, वेयर डू आई स्टैंड इन दी ऑर्गेनोग्राम, ग्रोथ कितनी है, ये क्या है, वो क्या है, हाउ ऑफन डू यू लाइक, मतलब आपकी ये तो नहीं पूछ सकते कितना कितना आप फायर करते हैं लोगों को। छुट्टी का सवाल नहीं करना होता कि कितनी छुट्टियां मिलेंगी, वो बोलेंगे तो काम पे आई नहीं, छुट्टियों का पूछ रही है, तो ये नहीं करना होता। बट आई वुड सजेस्ट कि इसको लेके आप सुसाइडल ना हो, और कहीं कहीं आपकी भी मिस्टेक है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि जो दुबई में जो कंपनीज जो कर रही हैं वो सही है, ऑफकोर्स बहुत गलत कर रही हैं, मैं भी उसका विक्टिम रहा हूँ। एक रियल स्टेट कंपनी ने मुझे हायर किया जिसकी वजह से मैंने अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ी, और फिर मैं पाकिस्तान आया और दे नेवर सेंड मी द वीज़ा। पर्शियन का वो ईरानी थे बंदा, उसका नाम था, बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, बिजनेस बे में कंपनी थी, तो उसकी वजह से फिर मैं 1.5 साल बेरोज़गार रहा। मतलब लाइक आई गॉट जॉब्स हेयर एंड देयर, मगर वो प्रॉपर जॉब नहीं कोई मिल पा रही थी, फ्रीलांस वर्क था इधर उधर। दैट्स हाउ आई सर्वाइव। सो या आई मीन ये तो है रियलिटी। तो फिर यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू चूज़ व्हाट यू वेयर यू चूजिंग टू वर्क, और टर्म्स आपने पहले ही डिस्कस करनी है कि ताकि आपको पहले दिन पता लगे पोछा लगवाना है या सही एचआर वाला काम करवाना है। तो उदास ना हो, इसको एज अ लेसन लें, ये ज़िंदगी इंसान इसी तरह सीखता है ज़िंदगी में। तो टेक इट एज अ लेसन एंड ट्राई नॉट टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, एंड मेक श्योर ये जो जॉब 7 है ये फिर ये स्टेबल हो, वरना ये फिर 15-15 दिन के गैप से इट लुक्स बैड ऑन द रिज्यूमे एंड देन इट लोअर्स योर चांसेस टू गेट हायर्ड, बिकॉज वो देखेंगे यार ये तो 3 साल में 3 नौकरियां कर ली, तो यहाँ कितना टिक जाएगी। गेट इट, इट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर रिज्यूमे। तो यार डोंट डू दैट। गुड लक, टेक केयर। हाँ जी, नेक्स्ट वन, योर एक्स पेट्रन। ओके, अस्सलाम वालेकुम इंट्रो, आई होप you're doing well. I'm an Afghan fan born and raised in Saudi Arabia, currently studying in aviation management in Turkey. I really wanted to meet you someday, and when I came to know that you're going to be in Baku for Formula One, I wanted to come there, but my passport wasn't there on time, or else I would have met you. Anyway, no regrets. अच्छा, इसमें एक चीज़ कि अनलेस मैंने आपको कहा हो, तो ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पीछे एक बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। अनलेस मैंने आपको कहा हो कि येस आई वुड लाइक टू मीट यू, ये टाइम है और हम यहाँ मिलेंगे, तो ज़रूर आएँ, ठीक है, बिकॉज आपको कन्फर्मेशन मिली है। अपनी तरफ से मुल्क से निकल के खर्चा होता है, टाइम होता है, टाइम इज़ मनी, पैसे तो फिर आए थे। आप टर्की से उठ के आते बाकू, मैं आपका मैसेज ही ना देख पाता क्योंकि हज़ारों मैसेज होते हैं रोज़, ठीक है। एक भाई का मैसेज मैंने अभी परसों पढ़ा, अपेरेंटली वो अपने बेटे के साथ लिस्बन में मुझे ढूंढते फिर रहे थे। इसी वजह से, क्योंकि ये मेरे साथ पहले भी बहुत हुआ है, मैं स्टोरीज़ लगाता रहता हूँ जहाँ जहाँ जाता हूँ, तो फिर लोग समझते हैं कि ये उनके लिए वेलकम है। आई वॉज विद माई फैमिली एक म्यूज़ियम में प्राग में, मैं वो लगा रहा था, तो एक साहब आ गए और वो फिर ज़बरदस्ती करने लगे कि मेरे रेस्टोरेंट पे आप चलें। अब मैं मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं इस वक्त म्यूज़ियम के अंदर खड़ा। अच्छा, वो म्यूज़ियम वाले को रिक्वेस्ट करके आए कि अंदर वो मेरे एक जानने वाले हैं, मुझे उनको देखना है, तो बगैर टिकट के वो अंदर आ गए थे। तो मैंने उनको बोला मैं आ जाऊँगा। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आई हैव माई ओन सेट ऑफ प्लान्स, क्या पता मैंने खाना खा लिया हो या कुछ भी हो, मगर वो एक ठीक है, आई नो लोग मोहब्बत करते हैं, उनकी कोशिश होती है मेहमान नवाजी, वो मैं बिल्कुल समझता हूँ, मेरे लाइक इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल, मगर यू कांट फोर्स, ठीक है ना। तो मैंने फिर उनको एक्सक्यूज़ किया, फिर मैंने बोला ठीक है आई विल ट्राई माई बेस्ट, विच ऑब्वियसली आई कुडंट, क्योंकि मेरा पूरा मैप, पूरी चीज़ें प्लान आउट थी, कहाँ खाना है, कहाँ जाना है, कौन सा ट्रिप है, कौन सा क्या है। तो लिस्बन में वो कोई साहब है, उन्होंने बाकायदा अपने दफ्तर से छुट्टी की खुद से ही, और अपने बेटे को, लिस्बन में इतनी गर्मी थी कि मैं शाम 5 बजे से पहले निकलता ही नहीं था होटल से,
क्योंकि वहाँ मगरिब रात 9:45-10 बजे होती थी, तो इतनी गर्मी थी। अब उस गर्मी में, अब मुझे नहीं पता ना, मैंने उन साहब का मैसेज मेरी नज़रों से गुजरा, ना मैंने उनको कंफर्मेशन दी कि ठीक है आपसे मिलना है आ जाएं। वो बेटे को ले के घूमता रहा। और लिस्बन में भाई चलना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, क्योंकि वो पूरा स्टीप है शहर। जैसे इस्तांबुल में नहीं आपको अक्सर गलियाँ चढ़ाई पे होती हैं, मैं बाकी थक गया था वहाँ पे। तो अब वो फिर मैं जब यहाँ आया, लाइक यूके में जब गया, फारिग था, मैसेज वैसेज खोले तो उन साहब का मैसेज मेरी नज़रों से गुजरा, तो मुझे बुरा लगा। हालांकि मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, मैंने नहीं किसी को बोला। तो प्लीज़ जितने लोग सुन रहे हैं, अगर मैं आपके शहर में या आपके मुल्क में हूँ तो बिल्कुल काम छोड़ छाड़ के खुद से ना आए कि ठीक है सलाम दुआ करनी तो वो सही है, लेकिन यू कांट बी लाइक कि अब आए हमारे साथ, हमारे घर चलें, पुलाव पकाया अम्मी ने। पाकिस्तान नहीं है यार, इतना महंगे इतने रुपए दे के बंदा यूरो लेता है और उससे चीज़ें प्लान करता है। वो पुलाव खाने और इमरान खान डिस्कस करने नहीं जाता मुल्क से बाहर, तो वो मकसद दूसरा होता है। तो बहुत मोहब्बत आपकी और सर आंखों पे, लेकिन ख़ुद से ना डिसाइड किया करें कि मैं रेडी हूँ आपसे मिलने के लिए। इंसान किसी भी मूड में हो सकता है, या बीवी बच्चों के साथ है, वो अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो मैं समझ रहा है मेरी बात। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया करें। अनलेस मैंने आपको बोला हो कि जी ये कोई मीटअप है, या मैंने आपको पर्सनली बोला हो येस आई वुड लाइक टू मीट यू, यू सीम लाइक एन इंटरेस्टिंग पर्सन, विच आई डू। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है और मैं इसी तरह लोगों से मिलता हूँ, और जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं मैं उनसे ऐसे ही मिला हूँ। चलो खैर ये तो होती रहेगी। ईमेल पे आते हैं। द प्रॉब्लम, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस रिलेशनशिप इज सच अ ब्लेसिंग फॉर ईच अदर एंड इट्स सैड टू सी दैट दे डोंट रियलाइज इट एंड ऑल दे डू इज मिस यूज द स्टेटस दैट द रिलीजन हैज़ गिवन टू देम। और बच्चों की कोई कदर नहीं अनटिल दे किल देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस। बिसाइड्स मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड बी काइंड टू देम एंड उफ नहीं कहना ब्ला ब्ला, बट आई हैव नेवर हर्ड कोई पेरेंट्स को पेरेंटिंग सिखा रहा हो कि हाउ टू रिस्पेक्ट चिल्ड्रन, हाउ टू गिव देम स्पेस एंड प्राइवेसी, हाउ टू नॉट इंटरफेयर इन एवरीथिंग एक्सेट्रा. Why do our parents want to be so much involved in our lives, and also why do they want to make our life by choosing our careers for us and by choosing a partner for us? My mom is a typical desi toxic mother who tries to shove down her decisions into my throat, and when I resist she starts emotional blackmailing and guilt shaming. I chose my career and she wanted me to become a doctor like any other bullshit kahani. After choosing my career for myself, she's like, you've chosen your career and now I'll choose my bahu. I can't stress enough about it that the concept just made me hate her, which I don't want to. Recently, my father's best friend's parents and siblings came to Makkah for Hajj. Father's best friend's parents and siblings. Okay. My mom went to one of the gatherings and saw a girl which happens to be my father's best friend's smaller sister. My mom liked the girl and she went ahead and told my father about it, and they both decided on my behalf that it will be a good match for me. Without even informing me, my father spoke to his best friend about it to see his reaction, that whether it's going to be a good reaction or bad. If by chance it happens to be a good reaction, then they would ask her hand from me. When I came to know about this whole situation, I confronted my mom about it, and instead being apologetic, she tried to convince me, and she was explaining to me, keep in mind, Junaid bhai, that in my religion, a boy doesn't need parents' approval to get married, while a girl will need an approval of her mahram to marry. Okay, I'm not going to comment on that. दोनों की रजामंदी उतनी equally ज़रूरी है. The point is that even religion allows us to choose and make our own decision without involving our parents, and yet they want to know what I will eat, where I will sit, whom I'll hang out with, and what will I do with my life. Their job is to teach us decision making, not to decide for us. Good. इतनी सी बात नहीं समझ आती उन लोगों को. Also, I'm 21, a struggling porn quitter. I know that I should at least be sober for 6 months to rewire my brain and the dopamine system of my brain to be in a relationship, let alone marry someone. अब मैं और मेरे वालदैन इतने क्लोज तो नहीं हैं कि उनको बैठ के ये बात समझाऊँ. फॉर द रिकॉर्ड बताता चलूँ कि आफ्टर गिविंग अस ऑल द चाइल्डहुड ट्रॉमा दे एक्सपेक्ट अस टू रिस्पेक्ट देम एंड बी काइंड टू देम. मुझे अभी भी पैनिक अटैक्स होते हैं व्हेन आई सी समवन फाइट or even speak loudly in front of me. I feel so sorry for my brothers. One of them is 6 and the other one is 12, and they both have seen our parents fight, not argue but physically fight, abusing each other, all those toxic mahal.
I'm in Turkey, far away from them. They are in Saudi. We are 7 siblings, and none of us are willingly living with them. Sometimes my sister do tell me, खुद तो चले गए, हमें इनके साथ छोड़ दिया. They do have plans of escaping that mahal and coming to Turkey for further studies, but deep down, we all know that they are just trying to escape that toxic mahal. We are all Turkish citizens, and I'm just waiting for them to finish high school to bring them here and get them admitted to Turkish university, which is free for Turks. But I feel sad and sorry about my brothers. Unka kya hoga? They need therapy, Junaid bhai. Tell me a way to save them from that mahal. Is this savior complex or what? I'm the oldest brother, which is why my sisters look forward to me for helping. At the end of the day, all I want from my parents is to be sorry, accept their mistakes, and either get a divorce or just live in peace. This is literally the story of every household in South Asia and Central Asia, or maybe the whole world is just fucked. I don't know at this point कि मेरा मसला है क्या, but what I know is my 5-year goal is to be on your podcast, inshallah. I was your Patreon, but because of some financial issues, I had to stop being your patron. That's fine, bro. कोई मसला नहीं है. It's the thought that counts. Writing you this email was a therapy itself. So thank you for giving us the opportunity to relieve some stress on our minds. Thank you. Your Turkish Afghan fan. Thank you so much, bro, for the message. और यही बात मैं पिछली एपिसोड में भी कह रहा था. पेरेंट्स जो हैं वो मज़हब की आड़ में छुपते हैं कि इन्होंने हमें संभालना है और इन्होंने हमारी फर्मा बरदारी करनी है. चाहे पेरेंट्स सारी ज़िंदगी घर का माहौल गलीज़ तरीन बना के रखे घर का. आई कांट फाइंड अ मोर सूटेबल वर्ड, बिकॉज घर में नहुसत होती है यार. घर में हर वक्त जो चिक चिक होती है ये जान पे पड़ती है और माल पे पड़ती है. हमारी नानी हमें बताती थी, घर में जो माहौल ख़राब हो तो या तो उसका इफ़ेक्ट आपकी ज़िंदगी पे होता है, सेहत पे होता है, या फिर माल पे होता है. बेबरकती होती है बेसिकली. तो और जाहिर बात है, देखो, नेगेटिविटी ब्रीड्स मोर नेगेटिविटी, और जिस माहौल में नेगेटिविटी होगी वहाँ पे अच्छी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती. ये कोई सेवियर कॉम्प्लेक्स नहीं जो आपने बात की कि आप अपने बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं. ऑब्वियसली आप बड़े भाई हैं, और बड़ा भाई बाप के जैसा ही होता है छोटे बहन भाइयों के लिए, क्योंकि वो ज़ाहिर है रिफ्यूज जब उनको पेरेंट्स में नहीं मिलती तो फिर वो अपने बड़े भाई को या अपनी बड़ी बहन को ही देखते हैं. राइट, दिस इज़ द केस इन एवरी साउथ एशियन फैमिली. सो दिस नॉट सेवियर कॉम्प्लेक्स. ऑब्वियसली यू हैव मेड इट आउट समहाउ, और वो ज़ाहिर है आपकी ख्वाहिश हो कि आपके बहन भाई ज़ाहिर है आपको अपनी जान से प्यारे होंगे, बहन भाई हैं, तो आप भी उनके लिए बेहतर चीज़ ही चाहते हो. रही बात ये शादी वाली, तो भाई अभी तो आप 21 साल के ही हो, अभी पढ़ाई लिखाई करो, ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है. और उन्होंने खुद ही ये देसी पेरेंट्स का या साउथ एशियन पेरेंट्स का ये इशू है कि अपनी मर्ज़ी थोपनी है दूसरे पे, क्योंकि ख़ुद अपनी ज़िंदगी अपनी टर्म्स पे नहीं जी पाते. राइट, ख़ुद की भी शादी किसी ने करा दी होगी पकड़ के, ख़ुद कुछ पता नहीं होगा करना क्या है ज़िंदगी में, जो दूसरों ने कहा वो फॉलो किया. बकरियों वाली ज़िंदगी गुजारते हैं सारी ज़िंदगी, और फिर औलाद के आगे शेर बनते हैं. ख़ानदान में कोई स्टैंडिंग नहीं, मोहल्ले में कोई स्टैंडिंग नहीं, कोई इतना ख़ास मकाम नहीं, लेकिन ये कि वो फिर अथॉरिटी चलाना तो सबको आती है ना. तो अथॉरिटी जब कोई नहीं मिलता तो बच्चों पे चलाते हैं, मतलब अपनी एज वाले पे चलाओ तो समझ भी है. तो ये अपनी मर्ज़ी दूसरों पे थोपना कि तू डॉक्टर बन जा, या तू उससे शादी कर ले, या तू ये कर ले, ये ना बेसिकली वो सिम्स होता है ना एक गेम, तो सिम्स खेलते हैं अपनी औलाद के साथ कि तू इस तरह जुड़ जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो ख़ुद बाहर बैठ के मतलब रिमोट से. एंड इट्स कॉजिंग केओस, एंड इट्स यार पेंडेमिक से बड़ा पेंडेमिक जो है ना, आई मीन एटलीस्ट इन साउथ एशिया, ये है. पेरेंट्स जो है ना ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं पूरी नस्लों का, अपनी मर्ज़ी थोप के और ये सब कुछ करके. अब आप देखो 7 बहन भाई हो अव्वल तो, अच्छा लड़ते सारा दिन है, बच्चे 7 हैं, बच्चे पूरे होंगे ये आप देख लेना. कभी प्यार से बात नहीं करेंगे, कभी हाथ नहीं पकड़ेंगे, कभी कोई फूल ला के नहीं देंगे, या कभी कोई आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगे. गालम गलोच, नोचना, जूते मारना, डंडे, बेल्ट, मतलब आई एम सॉरी यूजिंग दीज वर्ड्स बट इट्स अ फैक्ट. रियलिटी सबने देखी हुई है. तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तू चोर, तू ये, तू वो, फलाना, लेकिन बच्चे पूरे होंगे. कॉन्डम नहीं खरीदते साले. तो अब वो 7 जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं पोटेंशियली. उन 7 में से ऑन एवरेज अगर 3 बच्चे भी होंगे और फिर उनकी बीवियां, तो 21 और 7 28 लोगों की ज़िंदगी ख़राब होगी. और फिर ये परपेचुअल साइकिल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी. इट नेवर एंड्स मैन. तो डोंट गिव इन. अगेन ये बदतमीज़ी नहीं है, ये मैं कोई बदतमीज़ी नहीं सिखा रहा यहाँ पे बैठ के,
मैं सिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि भाई अपनी अपने राइट के लिए और अपने मेंटल पीस के लिए और अपनी सॉवरेनिटी के लिए भाई स्टैंड लो और डोंट गिव इन मैन। क्योंकि ये खुद भी टॉक्सिक हैं, खुद सारी ज़िंदगी लड़ाई झगड़ा करके गालम गलोच करके गुजार दी, ये चाहते हैं आप भी ऐसी गुजारें। क्योंकि ज़ाहिर है आपको ज़बरदस्ती किसी के साथ जोड़ देंगे, बच्चे तो हो जाएंगे मगर कनेक्शन नहीं डेवलप होगा। दूसरे कनेक्शन तो बन जाते हैं, वो वाला दिल वाला नहीं होता। फिर वो टॉक्सिसिटी होगी, फिर आपको वो जहर लगेगी, वो भी बोलेगी तू मनूस कहाँ से चिपक गया, मैं खूबसूरत थी या मैं मेरा फलाना ब्याह होना था, तू किधर से आ गया। फिर वो आप लड़ोगे बच्चों के सामने, वही साइकिल, सेम थिंग रिपीट्स एंड रिपीट्स एंड रिपीट्स। वाई? बिकॉज पोटेंशियली आपके पेरेंट्स की भी मर्जी नहीं होगी, उनको भी ज़बरदस्ती जोड़ दिया होगा। नाउ दे हेट ईच अदर, ठीक है, दे डू अदर थिंग्स बट दे हेट ईच अदर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि साउथ एशिया में कपल्स मोहब्बत में नहीं, मजबूरी में भी आदतन साथ रहते हैं। देर टुगेदर बिकॉज आदत हो गई एक दूसरे की, वो सेलमेट है ना, एक साथ ही रहते हैं। नहीं हो तो फिर अरे यार वो सेलमेट का है मेरा, क्योंकि जेल में रहते हैं ना, तो वो जेल वाला वो पार्टनर चाहिए होता है। सो ये रियलिटी है। मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप भी थेरेपी लो, आपके बहन भाइयों को भी ज़रूरत होगी, जाहिर है माहौल बहुत ख़राब है। यू मेड इट आउट, पढ़ाई पे फोकस करो, बिकम समवन एंड समथिंग एंड गेट योर सिबलिंग्स आउट एंड पुट देम इन यूनिवर्सिटी। और उस माहौल से जितना दूर रख सकते हो रखो, वरना फिर ये कि अभी वो छोटे हैं, जितनी जल्दी उस माहौल से बाहर हो जाएं तो वो बेहतर है। वरना फिर जिस तरह आप सफ़र कर रहे हो वो भी करेंगे। इवन दो यूर एट अ बेटर प्लेस बट मेंटली यूर स्टिल देयर, बिकॉज उन्होंने आपको खींच के रखा हुआ है। आज़ाद नहीं हो, आपकी रस्सियाँ अभी भी उनके हाथ में यूँ पकड़ के। अगर आप हाथ में नहीं तो आपके बहन भाई हाथ में, तो आपको उनकी वजह से उनके हाथ में रहना है। बिकॉज अगर आप दूर हो गए, आपने कट ऑफ कर दिया, फिर उनका क्या होगा। सो यू वांट टू सेव देम एज वेल एंड यू वांट टू सेव योर सेल्फ एज वेल। सो दैट्स द रियलिटी ब्रो। आई विश यू वेल, आई होप थिंग्स वर्क आउट फॉर यू। और इसकी टेंशन नहीं लो कि मैं पेट्रियन था और वो फाइनेंशियल इशूज से, कोई मसला नहीं है। लाइक आपने सोचा, दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच। आप स्टूडेंट हो, यूर ओनली 21 बेटा, जब कमाओगे तब कर लेना, अभी टेंशन नहीं लो इन चीज़ों की, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो एंड आई विश यू वेल, और आई होप थिंग्स गेट बेटर फॉर यू, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल मेक इट लास्ट बिकॉज बहुत भूख लग रही है एंड माई फ्रेंड्स आर आउट, उनको बोला ऑर्डर करें। खैर आखिरी ईमेल है, इसका टाइटल बड़ा मुझे फ़नी लगा। आई नो, आई एम श्योर इट्स एक सैड स्टोरी। किसको अपनाऊं किसका दिल तोड़ूं। और जिस फॉन्ट में ये आई है ना ईमेल, MSN मैसेंजर याद आ गया, कॉमिक सैंस में आई है और हेडिंग्स हैं और वो कलर हाइलाइटर से कलर हुई। इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप यू आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ ABC फ्रॉम कराची। आई एम 25 and currently living in Middle East. Let's just say that. I belong to a middle class family. After my graduation, I moved since 2018 because I couldn't find a well-paid job in Pakistan. As I have a big family, alhamdulillah. I'm the oldest kid, so I have a lot of responsibilities. As I mentioned above, I am in an age where I should get married. 25 में, okay, fair enough if you think so. शादी एज से नहीं होती, शादी होती है कि हाउ रेडी यू आर मेंटली एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियली, क्योंकि यू हैव टू प्रोवाइड फॉर अ फैमिली इफ़ यू आर एबल टू रेज अ फैमिली। बहुत से लोग होते हैं 30 साल की उम्र में भी 30,000 कमा रहे होते हैं, बहुत से लोग होते हैं 18 की उम्र में 3 लाख रुपए कमा रहे होते हैं। तो खाली फाइनेंसिस से भी नहीं देखना चाहिए, फाइनेंसिस प्लस मेंटल स्टेबिलिटी एंड इफ़ यू आर रेडी मेंटली। ओके, जस्ट बिकॉज यू आर हॉर्नी शादी नहीं करनी, समझ रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, दूसरे लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि जी गलत काम हो लगेंगे तो पहले ये कर लो, ठीक है भाई। अगर इतना कंट्रोल नहीं है और सिर्फ शादी सेक्स के लिए शादी करोगे तो फिर वो क्या इज्जत दोगे आप अपनी बीवी को, उसको आप फिर एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट ही समझोगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर समझोगे। तो खाली सेक्स के लिए शादी नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स इन होते हैं। ओके, सिचुएशन नंबर 1, वन ऑफ माई कजन हु इज़ 9 years older than me, she and her mother, mean my khala, wants that I should marry with her. She is obviously, खाला तो चाहेंगी, बेटी बड़ी है, आप 25 के हो तो वो 34 की हुई, प्लस आप मिडल ईस्ट में हो तो वो तो यही चाहेंगी कि भाई सामने सामने हो जाए शादी। शी इज़ एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, ओपन माइंडेड एंड इंडिपेंडेंट गर्ल. शी हैज़ अ गुड जॉब इन बैंकिंग सेक्टर. शी ओनली वॉन्ट्स टू गेट मैरिड विद मी. फॉर वॉट रीज़न आई डोंट नो. आई ऑलरेडी टोल्ड यू मैन. शी इज़ 34. पाकिस्तान में कहते जी 26 के बाद लड़की एक्सपायर. मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं. आई मीन आपके सामने मुल्क, ठीक है ना. तो शी इज़ ऑलरेडी इन हर 30s. हर मार्केट वैल्यू जो हमने खुद एक बनाई हुई, हालांकि ये बिल्कुल शैम, इट्स एब्सोल्यूट शिट. मैंने जैसे कहा कि मेंटली वेन एवर यू आर रेडी, ठीक है ना. हमने ये फजूल का बनाया हुआ है कि जी 26 पार कर गई तो अब इसको कैंसिल कर दो और इसको, आई डोंट नो मैन. शी वांट्स टू गेट मैरिड फॉर रीजन आई डोंट नो. मे बी शी लाइक्स मी और व्हाट आई डोंट नो.
एंड हर मदर इज़ ऑल्सो फोर्सिंग फॉर दिस। तो जो चीज़ जहाँ पे फोर्सिंग होगी वहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा, तो फोर्सिंग वाले से चीज़ों से शादी नहीं होती। As you know, our society, she is much older than me. First of all, there is a big age difference. First, again, age difference doesn't matter. 10 सालों 20 साल बड़ी हो कोई मसला नहीं है, एज डजेंट मैटर। आप कंपैटिबल हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। मैं यहाँ पे अब रीजंस क्या है वो तो मैं कुछ और कह रहा था कि खाला फोर्स कर रही है। ज़ाहिर है खाला ने पहले अपनी मर्जी चलाएगी, नहीं लड़का थोड़ा ठिंगना है, नहीं लड़का थोड़ा ये है, थोड़ा ये कर करके जो है ना उन्होंने कर दिया होगा आगे टाइम। और फिर अब कोई नहीं मिला तो चलो अपना मुनीर तो बैठा ही है ना, मैं एक फ़र्जी नाम ले रहा हूँ, मुनीर भाई नाम नहीं है इनका। अगेन एज डिफरेंस से डजेंट मैटर, एज डिफरेंस कुछ नहीं होता, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंडली शी इज़ फ्रॉम शिया कम्युनिटी, आपकी खाला की बेटी अच्छा मे बी शायद आपकी खाला हो, एंड वी आर सुन्नी। शी मैंशन दिस वेरी क्लियरली टू माई फैमिली दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज हर फिका। ओके, she don't want to live in my house with my family after marriage as I have a lot of responsibilities, so it's difficult for me to buy or rent a new house. Dude, I mean, देखो अगेन फिका डजेंट मैटर, मगर अगर आप इन मामलात में बहुत पर्टिकुलर हो रिलीजियसली तो आपका राइट है, ना एक्सरसाइज करो। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, ठीक है ना, इट डजेंट मैटर। मगर जिस तरह वो कह रही है कि भाई तुम्हारे घर नहीं रहूँगी और ये तो जो फिर आई मीन लाइक आई एम नॉट सरप्राइज शी इज स्टिल सिंगल, यू नो, क्योंकि कुछ लोग ऊपर से आने की करते हैं कि ये भी नहीं, तो फिर कहते हैं भाई फिर एक काम करें आप अकेली रह लें, खल्ली वल्ली हम अपना देख लेंगे। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट पुट आउट योर प्रायोरिटीज़, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप पहले ही कम्युनिकेट करें, एंड शी इज़ डूइंग द राइट थिंग कि पहले ही बता रही है कि भाई ये कर लो, ठीक है। अब वो आपके उस पर नहीं हो रहा, वायबल नहीं है इकोनॉमिकली, आप कहाँ से नया घर लाएंगे, पहले ही मुश्किल से आप संभाल रहे हैं, तो फिर ठीक है। और फिर फिके वाली बात आपने कर दी, ओके। एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू क्विट हर जॉब, तो मतलब आप बिल्कुल इस तरह घर बिठा के रखना है तो भाई अगेन इट्स योर चॉइस। आई डोंट हैव एनी इशूज़ विद हर करियर, ओके दैट्स गुड, और जॉब, बट आई वॉन्ट हर टू चेंज हर फिका एटलीस्ट, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स हर। यार फिर एक काम करो, किसी को चेंज करने से बेहतर है जो अपने फिके, मतलब सुन्नी 22 करोड़ का मुल्क है भाई, ठीक है ना, उसमें से 10-11 करोड़ तो सुन्नी है ना, लड़कियां अगर मैं बात करें तो भाई इतना भरा पड़ा है मुल्क, ज़रूरी खाला की बेटी को चेंज कराना, कोई सुन्नी देख ले भाई, चेंज नहीं कराओ किसी को, मतलब आई डोंट नो मैन। फिर कल को बोले अच्छा तू फिर ये चेंज कर, इस तरह अगर वो बोले भाई तू शिया बन जा, फिर क्या करोगे? अगर आप कह रहे हो कि भाई तुझे मैं सही रास्ते पे ला रहा हूँ तो उसकी नज़र में तो सही रास्ता उसका है, तो आप हो जाओ। आई डोंट नो मैन, अगर इतना प्रॉब्लम है ना, देखो सीधी बात है, माई पॉइंट इज़ कि अगर इतना प्रॉब्लम है ना, चलो रिलीजन पे अब समझ आती है कि यार रिलीजन पे बंदा कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ फ़िके वाली बात है तो भाई अगर आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा तो फिर आप अपनी फ़िके में देख लो, क्या ज़रूरत है। वही वाली बात ना, आप इसको मैं यूं कर दूं तो भाई जो ऑलरेडी यूं है वो ले लो ना, समझ रहे हैं मेरी बात, क्यों किसी पे प्रेशर डालना। हर मदर इज़ माई खाला लाइक आई सेड अबव, एंड हर फादर इज़ माई सगे ताया, बिकॉज माई मदर एंड हर सिस्टर बोथ गॉट मैरिड इन वन फैमिली, ओनली माई ताया अबूज फैमिली इज़ शिया, बिकॉज ही वर्कड एंड लिव्ड इन बहरेन एंड कन्वर्टेड देयर, नाउ दे हैव बिकम एंड दे हैव कम बैक एंड सेटल्ड इन पाकिस्तान। अच्छा वो बहरेन जाके शिया हो गए, ओके। So that's why my parents are going through a lot of pressure from both sides, and they are not going to give them a yes or no answer from the last 3 years. मतलब 3 साल से खाला की बेटी को आप लोगों ने लटकाया हुआ है। I respect her a lot and I always saw her just like a cousin. एक तो यार ये cousin वाली चीज़ जो है ना बहुत ऑफ है यार, हमारे समझते नहीं है लोग। खैर, सिचुएशन नंबर 2, माई पेरेंट्स वॉन्ट्स मी टू गेट मैरिड विद माई अदर कज़न, चाचू की बेटी। अबे यार ख़ानदान से भी बाहर देख लो, कज़नों में ही फंसे रहोगे, फिर वही कज़न मैरिज करते रहोगे। भाई कज़न मैरिजेस के क्या क्या नुकसानात होते हैं ज़रा इसके बारे में पढ़ें, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इसके बारे में खुदा के वास्ते एजुकेट हों। कज़नों से बाहर देख लें, कज़नें बहनें होती हैं, ये बहन सम्मान होती है। सारी ज़िंदगी आपने बाजी बोला होगा, फिर बाजी को आप ले आओगे कमरे के अंदर, ऐसे नहीं करते भाई। इतना बड़ा ख़ानदान होगा आपका, इतनी बड़ी दुनिया है यार, कोई और देख लो। एनीवे, चाचू की बेटी इज़ यंगर देन मी, शी इज़ गुड, वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड, सेम मिडिल क्लास फैमिली, मोर लाइक अस, बट आई स्टिल डोंट हैव एनी इंटरेस्ट एक्सेप्ट शी इज़ सुन्नी लाइक अस। अच्छा इंटरेस्ट कोई नहीं है, बस सुन्नी हो तो पकड़ लो, ये क्या बात हुई? ऐसे तो मैं भी देख लूँ भाई, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बट द बूटी इज़ फाइन, ऑलराइट योर माइंड। ऐसे थोड़ी होता है। अबे भाई यहाँ से शादी होती है, जिस्म से
या क्या यार, डूड बहरीन कहाँ रहते हो आप, मिडल ईस्ट में जहाँ रहते हो भाई, काम शाम करो. Situation number 3, my elder sister who is happily married with 3 children, all girls getting forced from their ससुराल that I should get married with her नंद. यार तुम क्या ब्रैड पिट हो क्या, सब पीछे पड़े हैं. अच्छा, वो बहन के ससुराल वाले कह रहे हैं कि बहन की नंद से शादी करो, उनको फोर्स कर रहे हैं. Now if we deny them, I will get married to any other person, they will create a lot of trouble for my sister as she has 3 children as well. Her husband is not as much supportive for her as he should be. भाई ये चीज़ें देख के शादी करनी होती हैं. Situation number 4, my मामू and फुप्पो they also have the same expectations from me and my family. भाई तू 4 शादियां कर ले, सारे मतलब सबको कर ले, उनसे भी कर ले, बड़ी वाली कज़न से भी कर ले, छोटी से, बड़ी वाली से इसलिए कर ले तुम्हें अच्छी लगती है लेकिन बड़ी हैं, छोटी से इसलिए कर लो सुन्नी है, तीसरी से इसलिए कर लो कि वो बहन की नंद है, बहन का घर ख़राब ना हो जाए, अब चौथे मामू भी आ गए. तो मुझे एक ही लड़का है क्या भाई तू पूरे खानदान में. मामू एंड फुप्पो ऑल्सो हैव सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माय फैमिली दैट आई विल आस्क माय पेरेंट्स टू गेट मैरिड इन वन ऑफ देयर डॉटर्स. अच्छा, मामू और फुप्पो 5 लड़कियां इस बंदे की जिंदगी में. ऊपर हेडिंग क्या थी, किसको अपनाऊं किसका दिल तोड़ूं. अच्छा, दिल तोड़ूं ऐसे लिखा है सब मर रही हैं तुझ पे. वो उनके पेरेंट्स की ख्वाहिश है, उनकी नहीं है नेसेसरीली. कोई मर नहीं रहा भाई तुझ पे. They didn't say clearly face to face with my parents about this, but indirectly they are saying to my parents that ख्याल रखना हमारा. अबे ख्याल रखना ही तो वो होता है जब न्याज बट रही होती है ना, तो बहन ज़रा ख्याल रखना, थोड़ी बोटी अज्जू घर पे आएगा काम दफ्तर से, उसके लिए भी ज़रा पार्सल लेके जाना है. अबे तो न्याज है, भी तो लौंडा है पूरा. वॉट दे एक्चुअली मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड वेल. नाउ कम टू द ट्विस्ट पार्ट ऑफ दिस. अभी और ट्विस्ट बाकी है तेरी स्टोरी में, अभी ट्विस्ट है. सिचुएशन नंबर 5, जुनैद भाई, विद ऑल दी सिचुएशन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई ऑल्सो लव समवन. ऑल्सो लव समवन एक छठा भी है. आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ स्वीट गर्ल हु इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट लव ऑफ माई लाइफ. देखो बेटा, लास्ट नहीं कहते किसी को, नेवर से नेवर. हम भी बहुतों को लास्ट बोलते थे, भाई ये आखिरी है. आखिरी बार कब याद है ये भी याद नहीं. फ्रॉम माई स्कूल टाइम्स शी वॉज माई क्लास फेलो. वी आर इन रिलेशन सिंस 2010, आवर स्कूल टाइम. आई फॉल इन लव विद हर व्हेन आई फर्स्ट सॉ हर. यार भाई तू बहुत फिल्मी है. मुझे तो लग रहा है तूने एग्जैजरेशन अपनी खुद ही बनाई हुई है कि ये सब मुझ पे मर रही है, सब मुझसे शादी करना चाह रही है. द सैड पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप इज दैट शी बिलोंग्स टू अ क्रिश्चियन फैमिली. यार ये मुझे कोई ट्रोल कर रहा है. सारे फेंके हो गए, सारे मज़ाहिब हो गए. अभी लिया कोई सिख भी निकल आएगा, कोई हिंदू भी निकल आएगा, यहूदी भाई यहूदी रह गए भाई तेरी जिंदगी में. शी इज़ क्रिश्चियन एज वेल एज हर रिलीजन एस्पेक्ट्स एंड आई कम टू नो दिस. अच्छा, शिया कबूल नहीं है, क्रिश्चियन से 12 साल से है रिलेशनशिप, शिया कबूल नहीं है. ये देख रहे हो, लोग कहते हैं ना एंटी शिया हेट कितना है हमारे मुल्क में, ये मिसाल है. क्रिश्चियन कबूल है, रिलेशनशिप है 12 साल से. हराम रिलेशनशिप, हराम ही हुआ ना भाई. रिलेशनशिप हराम है भाई. अगर आप मजहबी, इतने मजहबी हो तो इतना तो पता ही होगा आपको. गैर महरम, गैर मजहबी, गैर महरम, शिया कबूल नहीं है जो कि कज़न है. I come to know this when we start talking to each other in a very initial stage of our love. That time we were young like kacha zehen and garam khoon. So we don't care about all religion, caste and all these things. बेटा यही तो मसला है. शुरू में सब गरम खून होता है तो लग जाते हो, फिर एंड में बोलते हो तुम तो ये हो, हम तो ये हैं. आई एम स्टिल लविंग हर सेम एज द फर्स्ट टाइम. वी स्टिल डेली टॉक टू ईच अदर. हर फैमिली एंड माई फैमिली नोज वेरी वेल अबाउट अस फ्रॉम लॉन्ग टाइम. जुनैद भाई, वो बंदी आज तक मेरा इंतज़ार कर रही है, उसकी और मेरी एज सेम है. टिल नाउ शी हैड अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स एंड शी डिनाइड ऑल ऑफ देम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर लव, और आई शुड से जस्ट फॉर मी. व्हेन हर फैमिली फर्स्ट न्यू अबाउट हर रिलेशनशिप दे डिनाइड, बट आफ्टर सम टाइम दे अग्रीड. अच्छा, अभी कह रहा है फैमिली वहाँ अग्रीड है. भाई तू कंफ्यूज लग रहा है मुझे. दे डिनाइड बट आफ्टर सम टाइम दे अग्रीड जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर डॉटर हैप्पीनेस. दे ऑल आर वेरी हम्बल. अच्छा, वो लड़की की फैमिली वाले मान गए. But there is not even a single chance that my family will accept her. हाँ, अब आया ना पॉइंट पे. All of the time when I try to talk with them or convince them for her, they just denied on the spot. Always they have this typical type of shit. लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हम इस कास्ट से हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और ख़ानदान वाले थू थू करेंगे कि ईसाई लड़की को घर ले आए हो, लोग हमारे घर आना छोड़ देंगे. जुनैद भाई, वो लड़की मेडिकल फील्ड में है और ऑलरेडी सिटी का एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में जॉब करती है. शी इज़ वेल एजुकेटेड.
इवन वो जस्ट मेरी खातिर अपना रिलीजन, फैमिली, करियर, जॉब सब छोड़ने के लिए भी तैयार है। वो कन्वर्ट होने पे भी राज़ी है, बट मेरी फैमिली वाले इस बात को अपनी अना का मसला बनाए बैठे हैं। बेटा फैमिली वाले कभी भी नहीं मानेंगे। ऐसी ज़िंदगी, ऐसी एक रियल लाइफ स्टोरी हमारे दोस्त में भी थी। द मदर वॉज कन्वर्टेड मुस्लिम, बेटी तो थी ही मुसलमान पहले दिन से, बट बिकॉज माँ किसी ज़माने में क्रिश्चियन थी, रिश्ता ही नहीं होने दिया। नहीं हुआ, अबे नहीं करते एक्सेप्ट। वो कहते जी खून में है ये। अब ना तो मैं उससे शादी करके सेपरेट घर में रख सकता हूँ, आई ऑलरेडी हैव मैनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माई फैमिली, और ना ही अकेली रह सकती है, ना तो मैं उसे इधर अपने साथ मूव करा सकता हूँ। बेटा इसलिए कहता हूँ पहले सेट हो जाओ, प्यार बाद में करना। स्टेजेस हैं लाइफ की, पढ़ाई, करियर, फिर प्यार। प्यार पहले कर लेते हैं 2010 में, स्कूल में प्यार कर लेते हैं, फिर बेकार हो जाते हैं, गरम खून। अब ना खुद कर सक रहा है, खुद भी तड़प रहा है, फैमिली भी पूरी नहीं कर पा रहा, उसको भी नहीं, सब तड़प रहे हैं तुम्हारे इस इल डिसीजन की वजह से। मतलब नॉट जस्ट यू, मैं सबसे बात कर रहा हूँ जिनकी जो प्रायोरिटी टेढ़ी। देखो सारा मसला पाकिस्तान में प्रायोरिटीज़ का है। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं जी, पहले प्यार कर लो, पेट में कुछ हो ना हो, नीचे को सब कुछ हो, ये है हमारी प्रायोरिटी। अब ना ये कर सकता हूँ ना वो कर सकता हूँ। भाई प्यार कर सकता है, प्यार कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। खैर, माई क्वेश्चन जुनैद, देखो यार बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन पॉइंट, मुझे ना गुस्सा लोगों की नाइविटी पे आता है कि यार आप पहले चीज़ें जो आपकी करने की हैं वो करो, फिर बाद में दूसरी चीज़ें करो। अब आपकी वजह से ना आप भी डिस्टर्ब्ड हो। आपने अपना गड़ा खोद, वो नहीं, वो मीम होता साइकिल में डंडा मारते गिरते, कहते हैं देखो दुनिया ने क्या किया मेरे साथ, आपने वो किया है। अपनी चीज़ें आपने पूरी नहीं की हैं, अब आपकी वजह से जो है ना आपकी, बिकॉज यू कांट टेक अ डिसीजन, तो आपने वो क्रिश्चियन लड़की को भी परेशान किया हुआ है, खुद भी परेशान हो रहे हो। घर वालों का जब पता है नहीं मानेंगे, वो शिया नहीं मान रहे, तुम कह रहे हो क्रिश्चियन लाने की कर रहे हो। जुनैद भाई ऑलमोस्ट पिछले 10 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। अबे पिछले 10 साल से तो मैं कर भी नहीं रहा हैं, नहीं कर रहा हूँ। यू ऑलवेज मोटिवेट मी विद योर कॉन्टेंट। जुनैद भाई मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, पूरी सिचुएशन में मुझे कंप्लीटली डिस्टर्ब कर रखा है, ना तो मैं अपना काम सही से कर, देखा ना बेटा मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर आपका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जब आपकी डोमेस्टिक लाइफ फक होती है, आपकी हर चीज़ फक होती है, ना आपका काम में दिल लगेगा, ना पढ़ाई में दिल लगेगा, ना आप कुछ कर सकोगे, ना आप कोई डिसीजन ले सकोगे, क्योंकि आपने इतने सारे पत्थर पीछे बांधे हुए हैं और आपने पहाड़ चढ़ना है, कैसे चढ़ोगे? तो यू नीड टू शेड सम वेट। ना तो मैं अपना काम से कर पा रहा हूँ, ना फैसला कर पा रहा हूँ, इन सब के साथ साथ मेरी सोशल लाइफ भी इफेक्ट हो रही है। ऑफ डे पे मेरे दोस्त बाहर कहीं घूमने जाते हैं और मैं टेरेस पे बैठकर सैड सॉन्ग सुनता रहता हूँ। भाई तू फिल्मी बहुत है भाई, तेरा मसला सारा ये है, और मज़ीद खुद को डिप्रेशन का शिकार करता रहता हूँ। जो ये भाई मुझे सबसे ज़्यादा अपनी मोहब्बत की परवाह है, और आखिर इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है जो मेरी उम्मीद में, मेरे इंतज़ार में बैठी है। अगर इस वक्त मैंने उसका दिल तोड़ दिया और ऐसा छोड़ दिया तो उसको तो क्या वो दोबारा कभी अपनी ज़िंदगी में किसी पे ट्रस्ट कर पाएगी? भाई वो तुम्हारा मसला नहीं है। या मैं इस गिल्ड के साथ ज़िंदा रह पाऊँगा कि किसी ने सही कहा था, सच सीने में बहुत जगह लेता, सच सीने में बहुत जगह। यार भाई बेटा तू फिल्में कम देख, थोड़ा काम वाम कर ले। इवन उसने मुझे यहाँ तक भी बोला है कि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो सुसाइड कर लेगी। आई नो हर, इफ़ शी सेइंग शी विल डेफिनेटली डू इट। इसके बारे में सोचता हूँ तो पेरेंट्स का चेहरा सामने आ जाता है। उनकी नाफरमानी करके क्या मैं कभी ज़िंदगी में खुश रह पाऊँगा? अगर मेरी सिस्टर के साथ उनके इन लॉज की तरफ से कुछ ट्रेजेडी हुई तो कैसे सामना करूँगा उनका? और मेरी 3 भांजियों का क्या कसूर है इस सब में? ऊपर से सब रिलेटिव्स भी जिनका जिक्र ऊपर किया है, उनको क्या जवाब दूंगा मैं? भाई तू एक काम कर, तू 5 लड़के क्यों नहीं ढूंढ लेता? तेरे पास कोई 5 ढंग के दोस्त हैं, एक एक करके शादी करा दे। एक शिया दोस्त पकड़, बड़ी कज़न की वहाँ करा दे, जो छोटी चाचा वाली है वो दूसरे, मतलब इज्जतदार 5 दोस्त होंगे ना भाई। अगर तू शरीफ आदमी है तो तेरे दोस्त भी शरीफ होंगे जिन पे तू रिलाय कर सकता है कि हाँ यार ये मेरी बहन सम्मान है, मैं अपने दोस्त सलीम के साथ ट्रस्ट करता हूँ, ये इसका ख्याल रखेगा। करा दे शादी, मसला ख़त्म। मामू को, पुप्पा, सबको ओके कर दो। अभी तू अकेली जान किस किस से शादी करेगा? मेरे भाई जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बेटी हम बेटी, अपनी बेटी तुम्हारे आस में बिठा के रखिए। भाई मुझे लगता है तुझे बहुत ज़्यादा ना फील हो रहा है कि तेरे
अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मतलब वो बूढ़ियाँ हो जाएंगी तेरे बगैर। इनकार की सूरत में कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक बोलेगा, आई कांट इमेजिन। जुनेद भाई आई एम रियली सॉरी, मैं मेल बहुत लंबी हो गई है बट मैं अपनी पूरी कोशिश की शॉर्ट रखने की, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे गाइड करने क्या फ़ैसला लूँ इस सिचुएशन में, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स मुझे किसी ना किसी फैसले पर पहुंचना ज़रूर है। मैंने अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड्स सब से भी गाइडेंस ली है, इस पे कोई मुत्तफ़िक का जवाब नहीं मिला। आखिर मुझे इस बात का समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हर किसी को आपसे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं। एज़ यू विजिट ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड यू नो बेटर, ऐसा और कहीं पे भी नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा दिल करता है कि सबसे शादी कर लूँ, वैसे भी 4 जायज़ हैं, हाँ ना। और कभी दिल करता है कि किसी से भी शादी ना करूं, किसी वेस्टर्न कंट्री में मूव हो जाऊं और सेटल हो जाऊं, बट फिर फैमिली का क्या ख्याल कौन रखेगा। मैं ओपन माइंडेड लड़का हूं, मैंने कभी किसी को मामलात में इंटरफेरेंस नहीं की। मैंने तो लव मैरिज के अगेंस्ट हूँ, मैं ना तो लव मैरिज के अगेंस्ट हूँ, ना अरेंज के और ना ही कज़न मैरिज के। फिर मेरी ज़िंदगी में इतनी इंटरफेरेंस क्यों। आपको लग रहा होगा कि क्या किसी ड्रामा की स्टोरी है, बट ट्रस्ट मी जुनेद भाई, ऑल ऑफ दिस इज़ ट्रू एंड दिस इज़ रियलिटी एंड एक्चुअली इट्स हैपनिंग विद मी। थैंक यू अगेन, सॉरी फॉर योर टाइम। व्हेन यू आंसर इट प्लीज़ रिमाइंड मी एपिसोड नंबर। अच्छा हाँ, वो मैं लिख दूंगा नीचे, वो मैं वैसे ही एपिसोड नंबर नीचे लिख देता हूँ। भाई साहब एक काम करो, इन सब का एक ही सोल्यूशन है, तुम एक बॉय ढूंढो और बोलो भाई मैं तो गे हूँ और मैं बॉटम हूँ, मैं टेकिंग साइड पे हूँ, मैं तो गे हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे ही बना हूँ। आई आइडेंटिफाई एज गेनिज्म। रेनबो फ्लैग वाली लगाओ कवर फोटो। अब बोलो भाई जिसने अपनी बेटी देनी है दे दे बड़े शौक से, खल्ली वल्ली, बॉयफ्रेंड भी रहेगा साथ, तो हम तीनों मिल के रहेंगे, बहने बहने दोस्ती कर लेना, रोटियां पकाना साथ मिलके, फिर देखना क्या होता है। और क्या बताऊं मैं भाई तुझे, आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी औरतें जो हैं, इतने सारे लोग, इतनी सारी ख़वातीन इस ख्वाहिश में हैं कि आप उनके पति परमेश्वर बने। ओ मैन भाई, वो ज्यू रह गई है, ज्यू लड़की भी देख ले कोई, सब तो हो गई। तो अब मैं इसमें क्या बोलूँ भाई, इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन दैट यूर इन। वो बहन की शादी और ये वो, भाई मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा, आप सबसे तो कर नहीं सकते, आप एक ही कर लो वो भी बहुत है, एक ही नहीं संभाल पाता बातें, ये 4 बार छोड़ें आप, 4 बड़ी कर ली आपने, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं लगे हुए आप कि 4 आप घर चलाओगे। आप जो हैं भाई इज़्ज़त के 4-5 दोस्त ढूंढें और घर वालों को बताएं, अपने मामू फूफी को बोलें भाई ये मेरा दोस्त है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, मतलब गारंटी तो किसी की भी लेनी नहीं चाहिए, मगर बोलो भाई शरीफ है आप देख लें, अब मैं किस किस से शादी करूं, मैंने तो एक ही से करनी है, तो अब मैं यही कर सकता हूं आपके लिए बेस्ट, मुझे और कोई मिलता नहीं है। दूसरा, आपकी फैमिली और आप ख़ुद जो हैं, आपको शिया एक्सेप्ट नहीं है, आप क्रिश्चियन कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कन्वर्ट भी हो गई तो वही वाली बात है, लोगों के दिल से नहीं जाता, एज इन के एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो दिल से मुसलमान नहीं होगी, मगर ये कि एक्सेप्टेंस जो पेरेंट्स की है वो नहीं मिलती भाई, वो आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। तो आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा बेहतर जानते हो, उनको क्या एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपको अपने पेरेंट्स की इतनी परवाह है, अगर आपको लगता है कि वो अफेक्ट होंगे या उसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होगा, तो देन चूज़ पीस। अब पीस चाहे आपको अपनी कुर्बानी में हो, हालांकि भाई मैं इसकी बिल्कुल इंडोर्समेंट नहीं करता कि जी आप कुर्बानी के बकरे बने और दूसरों की ख्वाहिशात पे ज़िंदगी जिएँ, ऐसी ज़िंदगी से बेहतर बंदा मर जाए, मैं ऐसी ज़िंदगी कभी नहीं चाहता। लेकिन अगर आप इतनी कशमकश में हैं कि आपको रिश्ते भी पूरे निभाने हैं, बहन का घर भी बसा के रखना है, उसका भी दिल नहीं तोड़ना, वो सुसाइड ना कर ले, तो अब मैं इसमें क्या ही कहूँ। तो इसकी बेस्ट सिचुएशन क्या निकलती है भाई, कमेंट में आप जो लोग बताना चाहें, रहनुमाई करना चाहें। मतलब ये पजल है ना कि भाई यहाँ से वो नहीं, वो चेस में होता है, यहाँ से ये मूव कर ले तो फिर ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ हो जाएगा, तो ये पूरा शतरंज की चाल आपकी ज़िंदगी इस वक्त बनी हुई है। तो ऑब्वियसली यू शुड मैरी द पर्सन यू लव, मैं तो यही कहूँगा ना जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी है। अब जस्ट बिकॉज एक आपकी कज़न है, तो मामू का पुप्पी खाला का दुख सहने के लिए तो आप नहीं आए ना, दुख को पैसिफाई करने तो इस दुनिया में नहीं आया ना कि चलो मेरी खाला खुश, खाला के लिए दुनिया में नहीं आया, आप अपने लिए आए। तो इस चक्कर में शादी ना करें या चाचे की बेटी से ना करें कि जी चाचा खुश हो जाएंगे, भाई आपने खुश होना है, तो आप जहाँ खुश हो आपने शादी वहाँ करनी है।
ये छोड़ो कि उसका घर है या वो बड़ी है या वो शिया है, ये है। आप जहाँ खुश हो आप वो करो, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करो भाई। अगेन जो लोग सुन रहे हैं, प्यार एंड में होता है भाई, ठीक है। वो फिल्मों वाली बात है जी, किया नहीं जाता हो जाता है, ढक तेरे की हो जाता है। बिल दिखाऊं अभी बिजली का कितना आता है, अपने घर का ज़रा बिजली का बिल देखो, पीछे टैक्स देखो कितना आता है, भरना पड़ेगा सारा। अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी सीधी रखें भाई, खुदा के वास्ते अपना करियर बनाएं, अपने किचन का मसला हल करें, 25 को ज़ीरो ना हो जाएं, हर महीने मंथ टू मंथ रहने वाली ज़िंदगी से ज़रा निकलें, ग़ुलामी से निकलें, ठीक है। और अपने फाइनेंसेस ठीक करें, फिर इन चीज़ों का सोचें। अगर आपको इतनी ही फ़िक्र है कि जी ये है वो है, तो भाई फिर करें जो करना है। शादी उसी से जहाँ आपका दिल चाहता हो, ना ये कि उसका घर बच जाए या उसका ये हो जाए, उसका, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम। आई नो सिचुएशन इज़ वेरी सैड, मगर ये कि आप इस दुनिया में लोगों की बेटियों से शादी करने नहीं आते। आपकी ज़िंदगी का और भी मकसद है भाई, तो अपना मकसद करें। मिडल ईस्ट में रहते हैं, मेहनत करें, काम वाम करें, और शादी सिर्फ वहीं करें जहाँ आपका दिल चाहता हो, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखें। आई विश यू लक, बट आई विश आई कुड हैव अ बेटर आंसर, मगर इससे बेटर आंसर और मेरे जहन में कोई है नहीं। सिचुएशन बड़ी गंभीर है, ठीक है। चलो अपना ख्याल रखें। और तो ये थी आज की एपिसोड। आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट। और आपके सामने भाई इस तरह के लोगों के मसले मसाइल होते हैं। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी मसलों में उलझी हुई है, लोगों की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा मसले होते हैं। तो इट्स अ लर्निंग फॉर यू ऑल, एंड आई होप आप इन सिचुएशन में ना हो, रिलेटिव सिचुएशन में ना हो। एंड द आइडिया ऑफ दिस चैनल इज़ के पोटेंशियली अगर आपकी लाइफ इस तरह की किसी सिमिलर प्रॉब्लम में आती तो आपको क्या करना चाहिए। सो आई होप यू find solutions of your problems through this channel, and subscribe करना नहीं भूलिएगा। और Patreon पे you can support on patreon.com/ganjiswag, and keep watching, and thank you so much. Hafiz.